حکام کا فیکس پرنٹ تسلیم کرنے سے انکار، جہاز کے ذریعے لاہور پہنچ گئی روبکار، طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، متوالوں کی بڑی تعداد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار، کئی رہنما بھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود، کارکنوں کے بھنگڑے نعرے، صدقے کے بکرے بھی ذبح کیے گئے۔ والد جلد گھر آنے والے ہیں، کارکنوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں، جذبہ اور امید بڑھانے پر شکریہ، مریم نواز کا ٹویٹ۔ علاج کے لیے مختصر مدت کی ضمانت کی استدعا مناسب، دوران ضمانت ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہوئی تو نواز شریف کی گرفتاری کا فیصلہ عدالت عالیہ کرے گی، 6 ہفتے مکمل ہونے پر ضمانت از خود منسوخ ہو جائے گی، سپریم کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، وہ مستقل بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی ہے، وہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کریں اور پھر دیکھ لیتے ہیں پلی بارگین کا ایک پورا قانون موجود ہے۔ عدالتی فیصلہ قبول، نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں تو عوام کے پیسے واپس کریں، پلی بارگین قانون موجود ہے، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ سابق وزیر اعظم کو بیماری نہیں، جیل کے اندر ٹینشن ہے، فواد چودھری کا طنز۔ نواز شریف کی ضمانت، آصف علی زرداری کی مبارکباد، لیگی کارکنوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان سمیت کئی شہروں میں متوالوں کا جشن، مٹھائی تقسیم۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی بڑا فیصلہ، جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا، حکومت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بالآخر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں کہو وہاں بیٹھیں گے، جیسا کہو ویسا مانیں گے۔ یہ راہ نکالنے کے لیے شہباز شریف ایک ماسٹر مائنڈ آدمی ہے، وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے۔ نواز شریف پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار، راستہ نکالنے کے ماسٹر مائنڈ شہباز شریف پتے چھاتی سے لگا کر کھیلنے کے ماہر، شریف اور زرداری خاندان سیاست سے فارغ ہو چکے، شیخ رشید کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ کراچی سے چلنے والا پیپلز پارٹی کا کاروان بھٹو شہداد پور پہنچ گیا، رات نواب شاہ میں قیام کا انتظام، جیالوں کا جوش و خروش دیدنی، جگہ جگہ شاندار استقبال۔ تعلیم کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے تھے، اب وہ نیب گردی کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں، سیاسی انتقام کو نہیں قبول کرتے، احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کو نہیں مانتے، پولیٹیکل انجینئرنگ کو نہیں مانتے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ایک کیس جو کہ کراچی کا کیس پنڈی میں ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کراچی کا کیس راولپنڈی میں کیوں؟ حکومت سن لے، سیاسی احتساب کے نام پر انتقام قبول ہے، نہ سیاسی انجینئرنگ۔ بلاول بھٹو برس پڑے، ٹرین مارچ کیا تو لگ پتہ جائے گا، مخالفین بھٹو کے نام سے بھی گھبرانے لگے ہیں، پی چیئرمین کے وزیر اعظم پر بھی تنقید کے تیر۔ وزیر اعظم ہاؤس سے چھینکیں آ رہی ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا یہ کیسا وزیر اعظم ہے۔ مودی اور دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں کہتا، اس کے سیاسی مخالفین کے خلاف
झूठी केसेस बनाते हैं। अब दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आता है तो हमारा वजीर आजम बुज़दिल है। मुलज़म तंजीमों के लिए NRO और सियासी मुखालफीन के लिए जेल, दहशत गर्दों के लिए NRO, लेकिन सियासी मुखालफीन के लिए इंतकाम। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का 4 घंटे तवील इजलास। सयाहती इलाकों में जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए NOC की शर्त खत्म। हवाबाजी की सनत को फरोग देने के लिए नई सिविल एविएशन पॉलिसी मंजूर। इस्लामाबाद में इमारतों की तामीर में बुलंदी की हद खत्म कर दी गई। वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग। मुल्की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम का आज से आगाज। एहसास कफालत मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। अवाम का एहसास रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म चीन के तजुर्बात से इस्तिफादे के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। जनरल कमर जावेद बाजवा का चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। लोरालाई में ऑपरेशन रद्दुल फसाद। मुकाबले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 तालिबान हलाक। 6 लेवीज एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द कमांडर भी शामिल। 4 जवान जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की 8 अप्रैल को नैब कोर्ट तलबी। नोटिस जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने दीगर 24 मुल्जिमान को भी तलब कर रखा है। चलाओ तुम गोली। सर गोली चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। नहीं कोई सेफ्टी के लिए नहीं खड़े, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए खड़े हो। आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं सर। शनाख्ती कार्ड क्यों मांगा? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची को गुस्सा आ गया। पुलिस एहलकारों से तकरार, गालम गलोच। एडिशनल IG को फोन लगाने की तड़ियां। एहलकारों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस एहलकारों से गालम गलोच। फहीम उज़्ज़मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिर्फ शनाख्ती कार्ड मांगने पर गालियां दी गईं। कासिम और अदनान का बयान। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रवैये पर शर्मिंदा, माजरत कर ली। वीडियो एडिट की गई। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में मुवक्कफ। कराची में FTC के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक शख्स जान बहक। 45 साला रियाज की शनाख्त हो गई। पुलिस मुल्जिमों का सुराग न लगा सकी। इस्लाम कबूल करने वाली डैरकी की रिहायशी बहनें मंजर आम पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। सिंध न भेजने और दारुल अमान में रखने की हिदायत। शौहरों की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जोर से बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। अक़लियतों के हुकूक का शोर मचाने वालों के देश में इंतहा पसंदों का जोर। मोदी के चेलों का मुसलमान नौजवान पर गले में रस्सी डालकर तशद्दुद। जबरदस्ती नारे भी लगवाते रहे। बारह घंटे गुजर गए, किसी ने मुज़ाकरात न किए। प्रमोशन के लिए 15 दिन ट्रेनिंग की शर्त नाकाबिल कबूल। पंजाब भर के कॉलेजेस असातिज़ा का असेंबली के बाहर धरना। मॉल रोड ब्लॉक, शहरी परेशान।
पाकिस्तान और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़, जायज़ा रिपोर्ट पर तबादला ख्याल, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क़वानीन और रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग, मालियाती इदारों की तमाम ट्रांजैक्शंस मॉनिटर की जा रही हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। रिहाई का फैसला तो आ गया, लेकिन आज़ादी का परवाना आने में कुछ ताख़ीर हुई और नवाज शरीफ अब तक रिहा ना हो सके। कोट लखपत जेल हुक्काम का रोबकार का फैक्स प्रिंट तस्लीम करने से इनकार, तारिक फजल चौधरी को खुसूसी तैयारे पर रोबकार लाना पड़ी। जी हाँ, और वो ये रूपकार लेकर लाहौर तो पहुंच गए हैं और अब जेल रवाना हो चुके हैं। मंजर आपके सामने है, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, आज तो इंतहा हो गई इंतजार की कारकुनों के? जी बिल्कुल, आज कारकुनों के इंतजार की बिल्कुल जो है वो इंतहाज भी, बल्कि 2-3 दफा गए तो फिर तो बेहतर है, ये लफ्ज इस तरह का है। लेकिन ये है कि 2 बजे से फैसला आया हुआ, लेकिन रोबकार आने पे नहीं आई। लेकिन अब वो खुसूसी तैयारे के जरिए तारिक फजल चौधरी जो साबिक वफाकी वजीर हैं और उनके रुकन कौमी असम्बली थे, वो लेकर पहुंचे और अब वो जेल की तरफ रवा दवा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 8 घंटे के दौरान जो है मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से अपना रिहाई का जो परवाना है उनको मिल जाएगा और वो वापस अपने घर जाती उम्रा जो है रवाना हो जाएंगे। आज सारा दिन जो है यहाँ पर वो देखने में आया कि जी के रोबकार चुके एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जब तक ये असली डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता जेल मैनुअल के मुताबिक, वो जेल वाले जो हैं, जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं, वो बिल्कुल बेबस हैं। चाहे उनको कोई भी फोन कर दे, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी फोन करे, तो वो जेल मैनुअल के मुताबिक जब तक असली रोबकार नहीं आएगी वो उनको छोड़ नहीं सकता, जो भी कैदी हो। और खास तौर पर चूंकि ये तो हाई प्रोफाइल कैदी थे, इस वजह से उनकी रोबकार का इंतजार किया गया। पहले फैसले में कुछ ताखीर हुई थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वहां पर फैसला जो है लिखने में थोड़ा सा मसला बना। उसके बाद जो है फैसले के बाद मचल के जो है वो जमा हुए, उसकी कॉपी मिली और ओरिजिनल जो है जो मुसद्दका कॉपी लेते ही फैसले के बाद जो है वो रोबकार जो है वहां पर जारी की गई। फिर वो उसको रोबकार की एक कॉपी जो थी वो तकरीबन कोई 9:30 बजे के करीब जो थी वो व्हाट्सएप और फैक्स मिल गई थी महकमा दाखिला पंजाब को। लेकिन जाहिर है जब तक ओरिजिनल रोबकार यानी मुसद्दका उसकी नहीं मिलेगी, असली जो उसकी दस्तावेजात हैं, तब तक वो नहीं होता। ठीक है अरसलान रफीक भट्टी, आपने कहा अगले आधे घंटे में रिहाई का इम्कान है, तो हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं सिचुएशन, रोबकार की आमद में ताखीर हो रही है, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रिहाई कागजात में अब 27 मार्च को होगी। तारिक फजल चौधरी का रोबकार लेकर कुछ देर बाद जेल पहुंचने का इम्कान है। जेल की तरफ वो रवां दवा हैं, क्योंकि तारीख बदल चुकी है, नया दिन है और ये नया दिन साबिक वज़ीर आज़म को कोट लखपत जेल से बाहर ला रहा है। तो इस तरह से एक दिन आगे बढ़ा है, एक दिन का इजाफा हुआ है। 27 तारीख से अब वो रिहा होंगे, तो यहाँ से उनके वो 6 हफ्ते शुरू होंगे, जिसका हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस दौरान अगर हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है तो उन्हें खुद को सरेंडर करना होगा, और अगर उन्हें इस अपील, ये जो ज़मानत है, ये जो रिहाई है, इसको एक्सटेंड करवाना है तो भी उन्हें अपील करना होगी हाई कोर्ट से ही। और हाई कोर्ट इसको एक्सटेंड करने का कोई फैसला करेगी। और अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर फैसला नहीं होता, उस अपील को मुस्तरद किया जाता है, तो साबिक वज़ीर आज़म को अपने आप को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। और नवाज शरीफ बहुत जल्द घर आने वाले हैं, ये कहना है उनकी साहबजादी मरियम नवाज का। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह के बाद वो लीगी कारकुनान की शुक्रगुजार हैं, कारकुनान ने उम्मीदों को बढ़ाए रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका हामी और नासिर हो। ये कहना था मरियम नवाज का, जिन्होंने इससे पहले दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होने से पहले कारकुनान से अपील की थी कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये दिन उनके लिए रिहाई लाए। और फिर वैसा ही हुआ कि अदालत की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत का हुक्म दे दिया गया। अब मरियम नवाज खुश हैं और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द घर आने वाले हैं। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी की जानिब से फैसला आने पर फ़ौरन ही ट्वीट किया गया कि अल्लाह करीम है, और अब उन्होंने अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि उम्मीद बढ़ाई, हौसला दिया, सबका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का बड़ा करम है, नवाज शरीफ की जमानत हुई, अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है। उनका ये भी कहना था कि मियां साहब के घर आने के बाद इलाज के लिए मुशावरत करेंगे।
उसका कर्म है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज दो अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज दें? मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और नवाज शरीफ को जमानत मिलने पर नून लीग ने जश्न मनाया। कोट लखपत जेल के बाहर मत वालों ने भंगड़े डाले और नारेबाजी की। सजदा शुक्र भी अदा किया गया। यही नहीं बल्कि शहर शहर मिठाई भी तकसीम हुई। देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का अदालती हुक्म, मतवाले पुरजोश, शहर शहर जश्न, भंगड़े, मिठाई तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आते ही नवाज लीग के कारकुन बड़ी तादाद में कोट लखपत जेल लाहौर के बाहर पहुंच गए, सजदा शुक्र अदा किया, भंगड़े डाले, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मतवालियां भी पीछे न रहीं। हमारे कायद की जमानत हो गई है और उसके साथ साथ आज हमारी ट्रेन के सिलसिले में हम भी अब आज कोर्ट में थे और वहाँ से जमानत करा के सीधा वापस। हम इस सिलेक्टेड हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखती, लेकिन हमें हमारा ट्रस्ट अल्लाह ताला पे बहुत ज्यादा है। अदालतों ने रिलीफ तो दे दी है, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का भी और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि मियां साहब का इलाज जो है ना वो बाहर के मुल्क होना चाहिए। मुल्तान में खानेवाल रोड पर लीगी कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, मिठाई तकसीम की गई। गुजरांवाला के मेयर ऑफिस में जश्न मनाया गया। बहावलपुर में मेयर ऑफिस में तकरीब के दौरान मिठाई तकसीम की गई। कसूर में भी कारकुन खुशी से झूमते रहे। सादिकाबाद विहाड़ी में भी मतवालों ने भंगड़े डाले और कायद नवाज लीग की जमानत के अदालती हुक्म पर खुशी का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के फैसले पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी मुबारकबाद दी है। साबिक सदर का कहना था किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने खैर मकदम किया इस फैसले का, जबकि पीटीआई रहनुमाओं ने इसे अदालत का फैसला करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिल गई। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने लीगी रहनुमा और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। एक बयान में उनका कहना था किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ की जमानत होना अच्छी बात है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आखिर मियां साहब को बेल मिल गया है, लेकिन अब तो हुकूमत के लिए ज्यादा मसले बनेंगे। तो ये 6 वोट का हुकूमत, ये 6 वोट का हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें रिहाई मिली है। खुर्शीद शाह ने कहा सियासत में इंतकाम का रुझान खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर असेंबली मुश्ताक गनी का कहना था अदालत का फैसला हमेशा कबूल किया। अदालत उज़्मा का फैसला हमेशा इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट किया है। अब ये अदालती फैसला है। हमने कभी इस फैसले की राह में ना पहले रुकावट बने हैं ना आज बने हैं। इलाज के लिए पहले भी ये कहा गया था कि वो जहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं मुल्क में इलाज करा सकते हैं, अभी भी यही है। नून लीग के पार्लिमानी लीडर और ANP रहनुमा ने फैसले का खैर मकदम किया। मुखालिफ सियासी कुव्वतों के मुंह पे तमाचा लगाया जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ मजाक उड़ा रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। बड़ा अच्छा फैसला है, खुशी का मकाम है। वज़ीर आज़म साहब जो है साबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको एक टाइम मिल जाएगा इलाज मुआलजे के हवाले। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई को अपोजिशन जमातों ने खुश आइंद करार दिया। किस्सा मुख्तसर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर में मुतवक्की है। जेल के बाहर कारकुन जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं जब से ये फैसला आया है। इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा फ़िदा हसनैन वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़िदा, बताइएगा रिहाई में कितनी ताख़ीर बाकी है अभी? जी, मैं इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर
थोड़ी देर के बाद ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की रिहाई जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि जो तारक फजल चौधरी हैं वो इस्लामाबाद से खसूसी तैयारे के ज़रिए से यहाँ पर रोपकार लेके अभी ही पहुँचे हैं। और इस वक्त जो जेल के बाहर का मंजर है वो नून लीग और के जो कारकुनान हैं वो इंतहाई जोश जज्बे के साथ यहाँ पर अपने कायद की को सूरत देखने के लिए मुंतज़िर हैं। जो जेल की ये दरवाज़ा है, यहाँ पर अगरचे यहाँ पर इतने ज़्यादा कारकुनान नहीं है, लेकिन जो दूसरी जानब है जो वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कारकुनान जो है वो कसीर तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि जो जाती उम्रा है वहाँ पर भी नवाज़ शरीफ की आमद के हवाले और इस्तकबाल के लिए भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिदा हसनैन। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की ज़मानत का फैसला कबूल है। अगर वो बाहर भी जाना चाहते हैं तो आवाम के पैसे वापस कर दें, उसके लिए प्ली बारगेन का कानून मौजूद है। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म को बीमारी नहीं है, जेल के अंदर टेंशन है। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि हुकूमत शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि जो भी अदालतों का फैसला होगा उसको हम जो है वो तस्लीम भी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब की जो सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है आज। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब का सवाल बड़ा सही सवाल था कि अगर ये टेंशन आपको है तो फिर तो बाकी सारे कैदियों को भी यही टेंशन है। अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखें, पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें और फिर देख लेते हैं। प्ली बारगेन का एक पूरा कानून मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब को भी चाहिए कि उन्हें लीगल एडवाइस करें। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जो भी बंदा ख़ानदान का बाहर गया है वो फिर वापस नहीं आया। इस पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि फवाद चौधरी के जहनी दबाव की वजह वो समझ सकती हैं। अवाम को बताएं कि जहांगीर तरीन और अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि अलीमा खान और जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे कब वापस लाएंगे। ये भी बताएं कि 8 माह में मनी लॉन्ड्रिंग के कितने पैसे वापस लाए गए। तर्जुमान नून लीग ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात के जहनी दबाव की वजह समझ सकती हैं। जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो गए। राह निकालने के लिए शहबाज शरीफ मास्टरमाइंड हैं जो छाती से पत्ते लगाकर ताश खेलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान सियासत से फारिग हैं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। बिल आखिर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार है। जहाँ कहो वहाँ बैठेंगे, जैसा कहो वैसा मानेंगे। इस ख़ानदान को सियासत से फारग समझता हूँ, समेत आसफ जरदारी के ख़ानदान। ये इक़्तिदार के भूखों का एक जुम्मा बाज़ार है जो अपनी कोशिशों, काविशों और अपनी तमाम इल्ज़ामात और बयानियों पे शर्मिंदा नहीं होते। और आप देखेंगे ये राह निकालने के लिए शहबाज शरीफ एक मास्टरमाइंड आदमी है। वो छाती के साथ लगा के ताश खेलता है। नवाज शरीफ मर जाएगा, 5 रुपए नहीं देगा एहतसाब वालों को। शहबाज शरीफ मर जाएगा, 5 रुपए नहीं वापस करेगा। आसफ जरदारी वापस कर सकता है, तरीके और सलीके से वो वापस कर सकता है। और अब जिक्र पीपल्स पार्टी का, जिसका कराची से शुरू कारवान भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। रास्ते में जालों का जोश खरोश दीदनी है। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि कराची का केस रावलपिंडी में क्यों चल रहा है। हुकूमत सुन ले, सियासी एहतसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वार्निंग दी कि जिस दिन ट्रेन मार्च शुरू किया तो हुकूमत को लग पता जाएगा। भुट्टो का नाम सुनते ही कौमी असम्बली से भी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। ये कैसा वजीर आजम है जो मोदी
اور دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں کہتا. اس کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹی کیسز بناتے ہیں. اب دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا وقت آتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم بزدل ہے. یہ کس قسم کا نظام ہے جس میں کالعدم تنظیموں کے لیے NRO اور سیاسی مخالفین کے لیے جیل، دہشت گردوں کے لیے NRO لیکن سیاسی مخالفین کے لیے انتقام. دہشت گردوں کے فائنانسنگ پہ کوئی JIT نہیں بٹھایا جاتا ہے مگر میرا ناشتہ اور میرا دھوبی کا بل پہ JIT بٹھایا جاتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے چھینکیں آ رہی ہیں. لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں. الگ پتہ جائے گا جب نیشنل اسمبلی میں آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے وزیر جل جاتے ہیں. ان کے وزیر کی چیخیں نکلتی ہیں. ان کے وزیروں کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. سلیکٹڈ گورنمنٹس کو بٹھانے اور چلانے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. جو وہ تالی کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے تھے اب وہ نیب گردی کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاسی انتقام کو نہیں قبول کرتے. ہم احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کو نہیں مانتے. ہم احتساب کے نام پر پولیٹیکل انجینئرنگ کو نہیں مانتے. ایک کس قسم کا انصاف ہے. ایک کیس جو کہ کراچی کا کیس ہے. جب کراچی میں FIR فائل کیا گیا، جب alleged accused ملزم کراچی کے ہیں، جب بے نامی اکاؤنٹس کراچی کے ہیں، جب کیس کراچی میں چل رہا ہے تو آخر پنڈی میں ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہے. یہ احتساب نہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. کرائم کراچی کا اور ٹرائل پنڈی میں یہ کیا ہے؟ ڈرنے والے نہیں ہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.